friends, this is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Would like to see Gala paper number 1 for basic. Question number 1 is like that. There are true and false. 22/7 is an irrational number. The statement is true because 22/7 is a pi and pi is an irrational number. Second question. The sum of the zeros of the quadratic equation, sum of the zeros of quadratic equation is greater than product of the zero. तो sum of the zero आपका हुआ -5 and product of the zero 4 and statement is sum of the zeros of a quadratic polynomial is greater than the product of the zero and that is not true, hence the statement is false. ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं. नंबर 3, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी. अब आपको एपी दिया है तो आपके बेसिक चेक करते हैं कि भाई आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा आता है कि नहीं. इज 4, फर्स्ट टर्म इज नॉट 4, फर्स्ट टर्म इज 7, hence again the statement is false. नंबर 4, sin square plus cos square equal to 1. तो ये आइडेंटिटी है. sin square theta plus cos square theta is 1 and that identity you will find in any of the paper set. And by doing the sums we are doing that. So sin square plus cos square 1, it is true. One more. 5 median is 3 times more minus 2 times mean. ये तो गलत फॉर्मूला है. Your statement is like that. यहाँ पे अगर मोड होता और यहाँ मीडियन होता तो स्टेटमेंट ट्रू होता. मतलब क्या अगेन it's a false statement is false. Number 6, tan 47 upon cot 43 is 1. ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया. कैसे? ओके, tan को अगर आप cot 90 minus 47 करो और नीचे cot का cot भी लेने दो, that means cot 43 upon cot 43, your answer is 1, hence it is true. तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स सभी के सभी खत्म हो गए. 6 ट्रू एंड फॉल्स है. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. 7 देखो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 97. अब देखो ग्रेटेस्ट 4 नंबर डिविजिबल नंबर है 9999. वेरी इंपॉर्टेंट वन, कंसीडर दिस वन. 97 से डिवाइड करो तो 97 बन जा 97 बचा 2. यहाँ पे एक 9 लेंगे नहीं चलेगा, दूसरा 9 लेंगे. 97 यहाँ पे अगर आप 3 से लिखेंगे तो 7 3 जा 21 2 9 3 जा 27 है 2, तो बचा कितना 1. अब एक रिमाइंडर आया. ये कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है, बट अगर इसको कंप्लीटली डिविजिबल करना है तो रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा. तो ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 97 ऑफ 4 डिजिट इज 9991. आपका ऑप्शन है सी. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. नंबर 7, कीप इट इन योर माइंड. नंबर 7 के बाद 8. लुक एट दिस 8. x by 2 6 by y equal to 2. You need to find out x minus y. You need to find out x minus y. अब देखो, if you compare these two, you are getting x equal to 4. And if you compare this for y equal to 6, that means y आया 3. Now x minus y मतलब कि 4 minus 3. Your answer is 1. इसका ऑप्शन भी बनेगा E. Now your 6 true and false and 2 of the MCQs over. Let us see question number 9. Number 9 देखो. Your number 9 is like that. Graph of equation
3x plus 5y equal to 15 and dash आपको ऑप्शन दिया है 5x plus 3y equal to 30 पैरेलल पूछा है। पैरेलल मतलब a1 upon a2 b1 upon b2 सेम होना चाहिए, भले ये तीसरा सेम नहीं हो तो ये तो कैंसिल हो गया, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। दूसरा देखो 6x plus 10y equal to 30, 3 2 are 6, 5 2 are 10 and 15 2 are, ये तो इनफाइनाइट हो गया, मतलब ये भी नहीं है। नंबर 3 देखो 9x plus 15y equal to 45, 3 3 are 9, 5 3 are 15 and 15 3 are, ये भी इनफाइनाइट हो गया, मतलब इक्वेशन का बाकी का आंसर नंबर 4 ही आएगा। पर फिर भी ऑप्शन चेक करते हैं 12x equal to minus 20y, that means 12x plus 20y equal to यहाँ पे 0, 3 4s are 12 and 5 4s are 20। C का हमको काम नहीं होता क्योंकि a1 upon a2 equal to b1 upon b2, but c1 upon c2 नहीं आएगा, that means answer is 4, that is B। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, डिस्क्रिमिनेंट तो 5 का स्क्वायर minus 4 into 1 into 5, 25 minus 20, answer remains 5। your delta, your b square minus 4ac is 5, option है A। नंबर 11 देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट px, y फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या होगा, वेरी सिंपल, ये तो आपको पता है x minus 0 the whole square under root में y minus 0 the whole square means your answer under root x square plus y square। many times this question we have seen, it is lying in the textbook as well। number 12, for a finite AP with n term, finite AP, finite खास याद रखना, with n term, first term is a, first term is a and last term is L, then sum of all is term, SNP फॉर्मूला पूछी है, फाइनाइट AP है तो आपका A plus L आएगा, और अगर बाय चांस इनफाइनाइट AP पूछा होता तो n by 2 2a plus n minus 1 into D आता। तो आपका यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, that's a very good question। look at this number 13, in the formula for mode L plus F1 minus F0, नीचे 2F1 minus F0 minus F2, नीचे into H। F1 denotes what? F1 denotes yes, class size, mean, the frequency of the model class। so what we can say, it is frequency, ये blank है, frequency of model class, mean नहीं है, model class। now the next one, number 14, number 14 में देखो, probability of the month of January having 5 Sunday, कौन सा, January। अब जनवरी में आपको पता है 31 डेज है, 4 कंप्लीट वीक मतलब कि 28, 7 4 से 28, अब बचे कितने दिन, 3, बराबर, तो आपका आंसर आएगा 3/7। जनवरी के लिए 5 संडे हो, 5 मंडे हो, 5 ट्यूसडे हो, जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब के लिए 3/7, रेस्ट ऑफ देम के लिए 2/7। बट फरवरी में लीप ईयर, फरवरी का अलग होता है, लीप ईयर है तो 1/7 और लीप ईयर नहीं है तो 0 आंसर आएगा, कोई भी फाइल का। नंबर 15 बहुत अच्छा है, if PE equal to 1 minus 16/31, then PE बार क्या होगा, तो वेरी सिंपल, PE plus PE बार इक्वल टू 1 होता है। अगर आपका ये 1 माइनस है तो आपका 16/31 आएगा आंसर, वेरी सिंपल, जो भी दिया है आपको वो 1 माइनस किया है, PE plus PE बार इक्वल टू 1। अब यहाँ पे PE क्या है, 1 minus 16/31
1 कैंसिल। अगर आप इसके बदले ऐसा रखते हो, लो समझा लो, प्लस टी बार इक्वल टू 1, ये 1 1 कैंसिल, ये उस तरफ जाके प्लस हो गया। इन शॉर्ट जिसका मैथ्स अच्छा है वो डायरेक्टली 1 माइनस है तो आपका आंसर। तो वी हैव कंक्लूडेड अप टू 15। 15 के बाद देखेंगे 16। 16 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर हैविंग 53 संडेज। देखो लीप ईयर मतलब 366 डेज, कंप्लीटली डिविजिबल 364, मतलब के बाकी कितने बचे 2, इसमें से कितने बचे, तो 2/7 इज द आंसर। 16 में आंसर इज 2/7। नंबर 17। 17 क्या है, फॉर द क्यूबिक पोलिनोमियल x³ minus 10x square plus 31x minus 30। ऐसा बोला है कि sum of the product of the zeros taken 2 at a time, sum of the product of the zero taken 2 at a time, मतलब कि c/a मतलब 31/1, आंसर आपका कितना आएगा, तो वेरी सिंपल, आंसर इज 31। 17 के बाद let us see, this is extremely important। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिछले वाले में बताया था, एक था 7, ये इंपॉर्टेंट है, आप एक मार्क करके रखो। 18 इंपॉर्टेंट है। n term of an AP, n term of an AP is given by 2n plus 1, that sum of first n term Sn equal to n/2 a। अभी फर्स्ट टर्म क्या आएगा इसका, S1 equal to 2 into 1 plus 1 मतलब कि 3 आया, फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म आपका कितना आया 2n plus 1। a plus l, a कैसे आया, तो ये a है, a1 equal to a। अब n/2, 3 plus 1 4 plus 2n, what is common, ओके n/2 में 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या हो गया 2 plus n, तो 2 कैंसिल, आपका आंसर n into n plus 2। फैंटास्टिक क्वेश्चन दिस वन इज। 18 के बाद 19, look at this 19। 19 radii of two circle are 8 and 12। radii of two circle, इसका 8 है, इसका 12 है। अब जरा ध्यान से देखो, while the distance between their center, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो 8 and 12 ये डिस्टेंस हो जाता है 20, टच करे तो बराबर, पर ये डिस्टेंस तो 20 से कम है, 20 से कम है मतलब कि ये ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, माय वेल ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। हाउ मेनी पॉइंट्स डू दिस सर्कल इंटरसेक्ट, क्योंकि इन 2 पॉइंट्स, और अगर ये लोग आपको नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछते हैं तो भी कितना होगा 1 and 2 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट। नंबर 20 areas of 3 faces of a cuboid which meet at one of the vertices are x, y and z। जरा ध्यान से देखना, ऑलरेडी 2-3 बार ये मैं समझा चुका हूं, पर फिर भी ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, ये आपका हाइट है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब देखो ये पहला एबीसीडी जो है, एबीसीडी इसका आप लोग देखेंगे तो एबीसीडी में आपको क्या क्या दिया है, L into H that is equal to x। अगर आप देखेंगे नीचे वाली साइड CDEF, CDEF देखो तो L into D, वो आपको दिया है y, और बाकी कौन बचा, आप लोग देखो AGBF, AGFD, FDDF, इसमें कौन कौन है, H into D, वो क्या है Z, कैपिटल दिया है कि स्मॉल, ऑल ऑफ देम आर कैपिटल। अब L स्क्वायर B स्क्वायर into x square equal to x, y and z, बट ये तो v स्क्वायर हुआ,
LBH इज द वॉल्यूम, बट आपको तो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का स्क्वायर नहीं, मतलब आंसर आएगा √xyz। ABC पूछा हो तो √ABC आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो वंस यू डू नो। नाउ नंबर 21, तो लुक एट दिस 21 देखो, if the radius of the circle is increased by 30%, oh good, radius of a circle is increased by 30%, जितने परसेंट है ऐसा लगा देने का, नीचे LCM 10 r plus 3r मतलब कि 13r upon 10 मतलब कि 1.3r हुआ। अब ओरिजिनल आपका पाई आर स्क्वायर है, ओरिजिनल, और जो इंक्रीज एरिया है वो पाई आर स्क्वायर मतलब कि पाई into 1.3r the whole square मतलब कि 1.69 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज एरिया होगा। अब परसेंटेज इंक्रीज में क्या होगा, 1.69 पाई आर स्क्वायर माइनस ओरिजिनल पाई आर स्क्वायर, नीचे ओरिजिनल एरिया into 100%, 0.69 पाई आर स्क्वायर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर into 100, आपका ये कैंसिल, आंसर हुआ 69%। टॉप क्लास, अगर 20% होता तो 1.2 होता, 1.2 होता तो 1.44 होता, आंसर 44 आएगा। नेक्स्ट वन 21 के बाद 22, वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द टू क्यूब, जरा ध्यान से देखना इसको, देखो यहां पे मतलब टू क्यूब दिया है, वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द टू क्यूब, L क्यूब अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी लेंथ कितनी आई, 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये लेंथ 2 और ये लेंथ भी 2, मतलब कि आपकी लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर, दोनों की कंबाइन। ब्रेथ आप लोग देखेंगे तो 2 ही रहेगी, इसकी देखो कि इसकी देखो, और हाइट भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो 2 ही रहेगी। अब सरफेस एरिया की आपके पास फॉर्मूला है LB + BH + H है, राइट? तो 2 × 4 × 2 + 2 × 2 + 4 × 2, तो 2 × 4 is 8 + 4 + 8 8 16 and 4 22 is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आया 23। देखो बहुत ही अच्छा है, ये y एक्सिस है और ये एक्सिस है, और उन लोगों ने पूछा है x = P of y, आया हो मैदान में जो 2020 जुलाई में पूछा, 1 2 3 and 4, how many zeros are there? Okay, 4 zeros are there, to be very precise, very very important question। And last and final, for this, find the area of the square, find the area of the square inscribed in a circle, जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 है तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 16। अब आपको पूछा क्या है, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये साइड x, ये भी x, AB स्क्वायर + BC स्क्वायर = AC स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब 256, x स्क्वायर + x स्क्वायर = 256, 2x स्क्वायर = 256, x स्क्वायर आया 128 एंड x स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर दो साइड का L × L, तो आपका आंसर हो गया 128 एंड thus all 24 पार्ट 1
of paper 1 of Gala Basic is over and out. Thank you very much. We'll see next time. Some more.